Hello, my dear students, and I hope everyone is doing perfectly fine. So, today I'll be discussing about acute appendicitis. So, we'll discuss in brief about where appendix is located, the gross anatomy. Along with that, we'll be discussing in short the clinical features, how the patient presents with acute appendicitis. Then we'll be discussing how the normal histology of appendix looks like and how the histology of acute appendicitis is. Okay. So our today's topic is acute appendicitis. So I'll be focusing on histology, the normal appendix and appendix with inflammation. So see, just in brief, I just want to show you. See, it is very important to know the anatomy always. Fine. So देखो क्या है ये? This is your ascending colon. ये आपका ऊपर आता है transverse colon. Then you have your descending colon. You have your sigmoid colon. Then you have your rectum, anal canal with external anal sphincter. ठीक है. तो जब हमने स्टार्ट किया असेंडिंग कोलन में आप देखोगे कि आपके पास यहाँ पे एक आइलियम भी है. ठीक है. दिस इज आइलियम. देन हियर यू हैव योर अपेंडिक्स. सो आर टुडेज ऑर्गन टू बी डिस्कस्ड. सो स्टार्टिंग में जब आप देखते हो जहां असेंडिंग कोलन शुरू हो रहा है उसके जस्ट ऊपर आप आइलियम देख रहे हो. ठीक है. उसके नीचे यू आर सीइंग योर अपेंडिक्स. ठीक है. विद द इलियोसिकल वाल्व. So ये gross anatomy just to picturize where this organ is located. ठीक है. So ऐसे आता है just like a कैसे कह रहे हो आप? इसको कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी कहते हैं, है ना. So एकदम एंड पे है ये असेंडिंग कोलोन के. So just असेंडिंग कोलोन है. You can say आइलियम है, सीकम होता है, तो उस आइलियोसिकल जंक्शन पे होता है ये. ठीक है. सो एग्जैक्टली सी अगेन अ लार्जर व्यू टू शो यू. ये है दिस ऑर्गन इज आर अपेंडिक्स. फाइन. आइलियम सीकम के बीच में जो आपको दिख रहा है. सो हाउ एक और कहाँ लोकलाइज्ड है बेसिकली ये. सो दिस appendix it arises from your posteromedial surface of cecum. ठीक है. where it lies exactly 2 to 3 centimeter inferiorly to the ileocecal wall which we have seen. ilium और cecum के वाल्व होते हैं, उससे 2 to 3 centimeter नीचे होता है where the tinea coli converge. Fine. Then it is basically a blind diverticulum. One end is closed. Okay. So you have your tip of the appendix जो नीचे ऐसे लटकी रहती है, तो उसका tip is your one blind end. And it measures approximately 2 to 20 centimeter in length, varies in different population. So it has its own mesentery जिसको हम कहते हैं mesoappendix. So जो tip of the appendix है where it lies, according to that, this which can have a variable localization. So in the abdominal cavity, उसके according we term it as retrocecal है, pelvic है या pre और post ileal है. Retrocecal is just behind your cecum. That is the most common location of tip of the appendix, seen in 65 to 70% of population. Then localization of the tip of the appendix is pelvic in 25 to 30%. In pre or post ileal region पे हो सकता है in approximately 5% of our population. So see, this is the gross, how you receive your gross specimen after appendicectomy. Appendicectomy is a procedure which is done to remove appendix. So here this is a tube like organ है, and which are saying mesoappendix जो आपको yellow areas दिख रहे हैं ये सारे. So this here this, so these are your mesoappendix. So इसको हम कट करते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन में. सपोज दिस इज योर अपेंडिक्स, सो यू कट इट लाइक दिस ड्यूरिंग क्रॉसिंग. ठीक है. सो यू गेट अ ट्रांसवर्स सेक्शन. उसको मतलब ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल इज अलोंग द प्लेन. So we take transverse section of appendix and also from the tip of the appendix. So when you cut, this is a luminal structure. ठीक है. बीच में you have lumen. So how you describe the layers of appendix? So first I'll be discussing the normal histology. Normal कैसा दिखता है? That is very important. जब भी हम कोई
स्लाइड देखते हैं या पढ़ते हैं या हम रिपोर्टिंग करते हैं, okay, तो we see how it is deviating from your normal histology. So see, suppose कुछ आया कि ये है स्टमक का ट्यूमर है, okay, तो स्टमक ट्यूमर, so if I don't know the normal histology of stomach, then I cannot be able to recognize, yeah, this is the abnormality which I am seeing in this section. Fine. So you need to know normal cells tissue, normal cells architecture कैसा होगा in that normal organ, and then you can compare it with your abnormal pathology. Fine, pathology. So see, when you cut it, जब हम transverse section लेते हैं तो this is luminal structure, तो center round area जो empty space है वो ये है, ठीक है. Then you have your mucosa. Mucosa में you are seeing glands, ठीक है. Then you have your submucosa, ये submucosa है. So submucosa में you can get reactive lymphoid follicles. Lymphoid follicles मतलब lymphocytes के aggregate. जैसे आप lymphoid lymph node के section में देखोगे lymphoid aggregate. Similarly, you see reactive lymphoid follicle consisting of all your centroblasts, centrocytes, immunoblasts, normal lymphocytes, small lymphocytes. ठीक है? So variable population of lymphoid cells in aggregates you are seeing that you see in normal lymph node histology also. So वो aggregate आपको appendix में भी मिलते हैं in submucosa. So reactive lymphoid follicle you see in submucosa. तो फर्स्ट हमारा ल्यूमन हो गया अंदर जो एम्प्टी स्पेस है. देन वी मूव ऑन टू म्यूकोजा. म्यूकोजा में यू हैव डिफरेंट कोलोनिक ग्लैंड्स. फाइन, असेंडिंग कोलोन वाले ग्लैंड्स याद रखो जिसमें वैक्यूलाइजेशन वैक्यूल्स वगैरह भी होते हैं, ठीक है. तो वैसे वाले ग्लैंड्स हैं ये, ठीक है. तो दिस इज कोलोनिक ग्लैंड्स विद सबम्यूकोजा शोइंग मेनी रिएक्टिव लिम्फॉइड फॉलिकल. यहाँ है लिम्फॉइड फॉलिकल. देन यू हैव हियर, देन यू हैव हियर. Here is lymphoid aggregate. So these are lymphoid cells in cluster. Okay. Then you have submucosa में you can have some vessels also. जैसे ये है हमारे vessels हैं जो capillaries होते हैं, उसमें जो red dot aggregates होते हैं, those are fibrin. ठीक है. तो that is your blood vessel. Capillaries you can say, and then you can have some fibrofatty tissue जो empty, ये सब दिख रहे हो, ये सारे fibrofatty areas है, adipocytes वाले area. Then you have muscularis propria. Muscularis propria is the muscle bundle, ठीक है, पूरा surrounding. So we are lumen, then you have mucosa, then you have mucosa में you have glands, colonic glands, lamina propria उसको कहते हैं, ठीक है, background जो उसका वो होता है structure. Then you have submucosa. Submucosa you have dense aggregates of reactive lymphoid follicles, and then you move on to muscularis propria, muscle bundle वाले areas हैं, and then you have serosa. This is the serosal layer. Serosa पूरी complete होती है appendix की part, except at the area where it is attached to the cecum वाला portion. Okay. So serosa and then subserosa भी हो सकता है. Serosa and subserosa. Serosa के नीचे आता है subserosa. So serosa is the outermost layer. So ulta you can see once again, revise करो इसको. You have serosa, then you have subserosa. Then you have muscularis propria. Then we move on to submucosa. Then you have mucosa और बीच में you have lumen. तो ये lumen, why I am stressing upon it, lumen क्या होता है ना, obstruction जो होती है appendix की, उसमें क्या होता है, lumen में aggregate में कुछ vegetable matter, ठीक है, then you can get fecal matter can get obstructed in it, then कुछ parasites आके obstruct हो जाते हैं, ठीक है. So all those obstruction, any tumor of appendix, so those will cause obstruction of the lumen. Fine. So obstruction जब होती है lumen की, appendiceal orifice की, तो क्या होगा, ठीक है, इंट्राल्यूमिनल प्रेशर और इंट्राम्यूरल मसल और ल्यूमन का प्रेशर बढ़ेगा. उससे क्या होगा, जो हमारे वैस्कुलर कॉम्प्रोमाइज होंगी, स्मॉल वेसल्स जो होंगे वो प्रेशराइज होंगे, ऑक्लूड होते हैं. देयर विल बी लिम्फैटिक स्टेसिस, लिम्फैटिक चैनल में ऑब्स्ट्रक्शन आएगा. ओके, सो देन व्हाट विल हैपन, मॉर्फोलॉजिकली फिर क्या चेंजेस आएंगे अपेंडिक्स में. अगर ये ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो सराउंडिंग में चेंजेस तो होने हैं. फाइन. तो ऑब्स्ट्रक्शन किसी भी रीजन से ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा हो, सो दैट विल लीड टू इंक्रीज इन इंट्राल्यूमन एंड इंट्राम्यूरल प्रेशर. दैट विल कॉज योर वैस्कुलर कॉम्प्रोमाइज एंड लिम्फैटिक स्टेसिस. And then how it becomes evident,
the wall of the appendix will become ischemic, necrotic. जब ग्रॉस हम देखेंगे तो नॉर्मल जो अपेंडिक्स आपके लाइट ब्राउन कलर का है विद अटैच मीजो अपेंडिक्स, वो डार्क दिखने लगेगा विद हेमरेजिक स्पॉट्स, एक्सुडेट्स, ब्लैकिश डिस्कलरेशन जैसा आ जाएगा. ओके, हेमरेजिक एरियाज होंगे उसमें. तो उससे क्या होता है, जब ये सारी चीजें आती है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ जाएगा उसके अंदर, अगर कुछ स्टेसिस और इश्केमिया चल रही है. तो अगर आप उस स्टेज पे अपेंडिक्स को रिमूव नहीं करते हैं तो क्या होता है, नेक्रोसिस और परफोरेशन, फट जाएगी अपेंडिक्स. फाइन. तो उससे क्या होगा, जब अपेंडिक्स आपका रप्चर कर रहा है तो लोकल एब्सेस फॉर्म होगा. सारे आपके साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन, रिमेंबर इट, सो ऑल दोस विल कम. एक एब्सेस फॉर्म हो जाता है एंड इन्फेक्शन कैन स्प्रेड आउटसाइड इन द पेरिटोनियम, तो दैट विल लीड टू पेरिटोनाइटिस आल्सो समटाइम्स. So it is very important to remove this structure when it becomes obstructed and shows inflammation ka sign. Appendicitis. Fine. So obstruction, as I said, it can be because of various causes. तो obstruction जो ये होता क्यों है acute appendicitis, तो पहला reason तो है obstruction. Obstruction can be because of many reason. Because of appendicolith, कुछ stone आ गया है, tumor आ गया है, देन कुछ पैरासाइट्स आ गए हैं, या लिम्फेटिक टिश्यू की हाइपरट्रोफी हो रही है, वो साइज बड़ी हो रही है, तो वो भी ऑब्स्ट्रक्शन करा सकती है. सो वैस्कुलर कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, कुछ प्राइमरी इन्फेक्शन, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की वजह से अपेंडिसाइटिस हो सकता है, और ट्रॉमा की वजह से भी. So once there is obstruction, signs of inflammation, how patient will present with. So once you know the pathophysiology, कि चलो इंट्राल्यूमिनल प्रेशर बढ़ा, जो अपेंडिशियल वॉल है वो सोलन अप हो गए, नेक्रोटिक हो गए, इश्केमिक हो गए. फाइन. तो उसके बाद पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा, हाउ विल यू कम टू नो दैट पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम अक्यूट अपेंडिसाइटिस. सो पेशेंट विल हैव सम सर्टेन साइन एंड सिम्टम्स. ठीक है, सिम्टम इज व्हाट द पेशेंट सेज, साइन व्हाट डॉक्टर ऑब्जर्व्स. सो एब्डोमिनल पेन से इनिशियली कोली की पेन होता है, बहुत जबरदस्त वाला पेन लेके आएगा पेशेंट विच इज नॉट टॉलरेबल. देन इट विल बी अराउंड पेरिअम्बिलिकल रीजन and it is classically dull and poorly localized. He cannot pinpoint कि यही दर्द हो रहा है मुझे. Fine. And slowly this localized colic pain will migrate to right lower quadrant, typically sharp and well localized. Then patient can point out कि हाँ मुझे यहाँ right lower quadrant में इस तरफ right side नीचे दर्द हो रहा है. Fine. And patient non-specific symptoms भी आते हैं patient के, like nausea, vomiting हो, and it is typically after the pain. तो pain, vomiting. Right. और नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हो सकते हैं, कुछ अगर एडिशनल बैक्टीरियल इन्फेक्शन है पेशेंट को, डायरिया, एनोरेक्सिया, कॉन्स्टिपेशन, फीवर लेके आ सकता है. और बहुत सीवियर केसेस में सपोज रप्चर हो गया अपेंडिक्स, तो साइंस ऑफ सेप्सिस भी हो सकते हैं पेशेंट में. पेशेंट कैन बी टेकिकार्डिक और हाइपोटेंसिव आल्सो. फाइन. सो दैट टाइम इट इज अ मेडिकल इमरजेंसी. दैट वाज द साइन, द सिम्टम्स, हाउ पेशेंट विल प्रेजेंट टू यू. एग्जामिनेशन, जब आप एग्जामिन करते हो, फाइन. सो जब आप रिबाउंड टेंडरनेस क्या होती है, दबा के जब आप छोड़ते हो ना एब्डोमेन को, तो उस समय क्या होता है, पेशेंट विंस करता है. सो दैट इज रिबाउंड टेंडरनेस. एंड परकशन पेन, मैकबर्नी पॉइंट होती है एक, जब आप, इट इज लोकेटेड राइट anterior iliac spine से when you draw a line towards umbilicus, so it is localized 3.8 to 5.7 centimeter over the right anterior iliac spine in line with umbilicus. Right? So एक लाइन आप ड्रॉ करोगे तो उसके इस एंटीरियर सुपीरियर आइलैक स्पाइन के 3.8 to 5.7 सेंटीमीटर ऊपर होगी वो, तो इसको कहते हैं मैकबर्नीज टेंडरनेस वाला पॉइंट हो गया. फाइन. सो अदर स्पेसिफिक साइंस हो सकते हैं, रॉब्सन साइन भी कहते हैं इसको. अगर आप लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट को प्रेस करोगे पेशेंट का, पेशेंट विल फील पेन इन द राइट लोअर क्वाड्रेंट. फाइन. एंड सेकेंड इज स्वॉस साइन, जब when the patient will extend the right hip, then patient will experience pain in the right iliac fossa. So ये abdomen के quadrants होते हैं. Fine. So you should know कौन कौन से, जब मैं बोल रही हूँ right iliac fossa, left iliac fossa, so that all quadrants are there. So it is very important to remember the कौन से organ कौन से quadrant में होते हैं. So when you go for clinical subjects also, you need to examine the patient. तो आपको पता होना चाहिए कौन सा, किस एरिया में कौन सी quadrant में कौन सा organ है, so that you can इमेजिन कि हाँ यहाँ ये ऑर्गन है तो यहाँ ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकती है. पेन के डिफरेंशियल डायग्नोसिस अगर आपको पूछा जाता है, एग्जामिनर पूछता है, तो देन यू कैन से कि हाँ ये राइट आइलिक फोसा पेन कह रहे हैं, तो राइट आइलिक फोसा में अपेंडिक्स वाला पेन आ सकता है. एक्यूट अपेंडिसाइटिस कैन बी अ रीजन फॉर पेन इन राइट आइलिक फोसा. तो स्वॉस साइन इज, जब आप राइट हिप एक्सटेंड करते हो, यू हैव पेन इन राइट आइलिक फोसा.
ऑब्ट्यूरेटर साइनस की इंटरनल रोटेशन जब आप करते हो राइट हिप का, देन पेशेंट इज हैविंग पेन. सो दीज आर सर्टेन साइंस जो आप यूज कर सकते हो इन डायग्नोस क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ अपेंडिक्स. चलो देन वी मूव ऑन टू लैब फीचर्स. लेबोरेटरी फीचर्स बहुत नॉन स्पेसिफिक होंगे इसके. टू बी क्लियर, इसमें क्या होगा, जब आप ब्लड टेस्ट करते हो WBC इंक्रीज हो सकता है पेशेंट का विद और विदाउट अ लेफ्ट शिफ्ट. लेफ्ट शिफ्ट इज व्हाट? लेफ्ट शिफ्ट मतलब कि यू सी प्रेजेंस ऑफ इमेच्योर पॉलीमर्स. ठीक है, इमेच्योर, जैसे उसके इमेच्योर, जब आप सीरीज देखोगे हिमाटोपोइसिस में हम पढ़ते हैं ना, ब्लास्ट होता है माइलोब्लास्ट. जब आप माइलॉइड सीरीज WBC की बात कर रहे हैं हम, तो माइलोब्लास्ट होता है. यू हैव प्रोमाइलोसाइट, यू हैव माइलोसाइट, मेटामाइलोसाइट, बैंड फॉर्म, एंड देन यू हैव पॉलीमॉर्फ्स व्हिच इज अ मोस्ट मैच्योर फॉर्म. फाइन. तो वो पॉलीमॉर्फ्स में अगर आपके बैंड भी दिख रहे हैं WBC में, तो इट इज लेफ्ट शिफ्ट. तो लेफ्ट शिफ्ट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है. जब भी WBC की काउंट बढ़ती है तो यू कैन हैव सम अमाउंट ऑफ सम पॉपुलेशन ऑफ इमेच्योर पॉलीमॉर्फ्स आल्सो. देन सी रिएक्टिव प्रोटीन, ये इन्फ्लेमेटरी मार्कर है. कोई भी इन्फ्लेमेशन में इट इज वेरी नॉन स्पेसिफिक. CRP एलिवेशन यू कैन गेट इट एनी इन्फ्लेमेशन, मेनी मोस्ट ऑफ द इन्फ्लेमेशन कोई इन्फ्लेमेटरी मार्कर है. देन ESR एलिवेटेड एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, तो ये इन्फेक्शन को डिनोट कर रहा है कि हाँ पेशेंट इज हैविंग अंडरलाइंग इन्फेक्शन. Then urine examination में ketones can be found in normal routine examination. So see, if diagnosis of appendicitis is made within 24 to 48 hours, 1 to 2 days में बना लेते हो, then prognosis is excellent. But अगर नहीं बन पाती है या पेशेंट लेट आता है आपके पास, तो क्या होगा? पेशेंट विल हैव रप्चर हो सकता है या एडवांस एब्सेस लेके आ सकता है, रेकरेंट अपेंडिसाइटिस भी लेके आ सकता है अगर वो रप्चर नहीं हो रहा, सेप्सिस, that will actually complicate the procedure of surgery. So once diagnosed acute appendicitis, see appendix नहीं होता है, acute appendicitis is the pathology. So appendicectomy is a gold standard treatment. Laparoscopic appendicectomy is preferred nowadays over your open approach. तो सी, ये एक जो वो मैंने आपको पहला स्पेसिमेन दिखाया था, दैट वाज वेरी नॉर्मल लुकिंग अपेंडिक्स विद अटैच्ड मीजो अपेंडिक्स. इस अपेंडिक्स में देखो लेफ्ट हैंड साइड इमेज में कितना ब्लैकिश है. ये तो आपके ये जो पूरा जो ट्यूब है, दिस इज योर अपेंडिक्स. ठीक है, ये आप देख रहे हो एक्सुडेट जैसे लग रहा है ना, ग्रे व्हाइट एक्सुडेट्स वाले एरियाज आ रहे हैं इसमें. देन यू हैव योर ब्लैकिश डिस्कलरेशन सी आ रही है, हेमरेजिक एरियाज आ रहे हैं यहाँ पे. सो दिस इज डेफिनेटली अ पैथोलॉजिकल अपेंडिक्स. तो ट्रांसवर्स सेक्शन जो मैंने कहा था, हाउ वी टेक इट, सो दिस इज राउंड स्ट्रक्चर. जब ऐसे ऐसे कट करोगे, सो दीज आर योर ट्रांसवर्स सेक्शन विद एन इंटैक्ट ल्यूमन. राइट. सो सी, जब हम हिस्टोग देखते हैं, अभी हमने नॉर्मल हिस्टोलॉजी पढ़ ली अपेंडिक्स की, कैसे कैसे क्या क्या था. ल्यूमन, देन यू हैड म्यूकोजा जहां पे कोलोनिक ग्लैंड्स थे. यू हैव सबम्यूकोजा, सबम्यूकोजा में क्या था, लिम्फोइड एग्रीगेट्स थे. फाइन. देन वी मूव्ड ऑन टू मस्कुलरिस प्रोप्रिया, मसल वेसल्स हैं वहां पे. देन सबसिरोजा एंड सिरोजा. सो नॉर्मली इन्फ्लेमेशन नहीं था. फाइन. जब एक्यूट अपेंडिसाइटिस होती है तो आप देखोगे ल्यूमन यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट हो गया हमारा. एक्सुडेट मतलब क्या, सारे पॉलीमॉर्फ्स हैं, डेब्री है. कभी कभी यू कैन सी पैरासाइट आल्सो, सेक्शंस ऑफ पैरासाइट, वर्मी, वो देख सकते हो आप. एंटेरोबियस के स्ट्रक्चर्स हमें दिखते हैं एक्यूट अपेंडिसाइटिस के ल्यूमन में. फाइन. तो आप एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस को सेक्शंस में भी हमें दिखते हैं. वी कैन आइडेंटिफाई द पैरासाइट आल्सो. समटाइम अमीबा कैन बी देयर, एंटामोबा हिस्टोलाइटिका के हम सेक्शंस में हमने देखे हुए हैं, वो RBC को खाया हुआ रहता है. तो दोज इमेजेस आर देयर. फाइन. सो दोज आर वेरी acute, that is, in fact, I got a chance to report this acute amoebic appendicitis when I was working in Ramanulaya hospital. Right, उसमें था अमीबा थे बीच में ल्यूमन में. तो अमीबा कैसे आप वो करते हो आइडेंटिफाई, छोटे छोटे राउंड स्ट्रक्चर्स देखोगे अमीबा के, उसमें देखोगे आप छोटे छोटे RBCs वो इंजेस्टेड होते हैं उसमें. सो देयर आर स्पेशल स्टेन टू एग्जैक्टली आइडेंटिफाई दैट दीज आर अमीबा, बिकॉज ऐसे आप नॉन स्पेसिफिक HE सेक्शन में इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से कि हाँ ये अमीबा है और ये दिस. समटाइम जो लार्जर है, जैसे कि आप एंटेरोबियस उसके जो इसके एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस के आप आइडेंटिफाई कर सकते हो पैरासाइट, यू कैन वेरी इजीली सी इट. बट अमीबा में समटाइम बिकॉज ऑफ डेंस इन्फ्लेमेशन इज नॉट इजी टू आइडेंटिफाई, सो वी नीड टू डू स्पेशल स्टेन. पास करा सकते हैं हम, सिल्वर स्टेन कराते हैं, देन वी सी इट. फाइन. सो यहाँ देखो आप ल्यूमन में पूरा ऑब्स्ट्रक्शन है, एक्सुडेट भरी हुई है यहाँ पे. जब आप हाई पार पे देखोगे, आई शो यू द इमेजेस, तो उसमें आप देखोगे डेंस इन्फ्लेमेशन आ रही है. पहले क्लीन थी हमारी हिस्टोलॉजी इमेज ऑफ अपेंडिक्स, बट जब पैथोलॉजी आई एक्यूट अपेंडिसाइटिस, तो सी थ्रू आउट दी वॉल जब हम बोलते हैं ना, तो इसका मतलब आपके मस्कुलर म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस प्रोप्रिया,
subserosa, serosa, पूरे pan throughout wall you can see inflammation. ठीक है? So that we say कि throughout the wall we are seeing dense acute inflammation and we see mucosal ulceration. जब हम बोलते हैं ये हमारा mucosa था ना जहाँ पे glands थे, तो mucosal ulceration मतलब क्या? तो all the proper जो architecture था lumen mucosa में जो glands थे वो पूरा destroy हो जाते हैं because of infection. So all those mucosal lining will be destroyed, destruction of the mucosal lining, and you see dense acute or chronic inflammation. Eosinophils भी दिखते हैं, अगर कुछ parasitic infection है तो आप eosinophils बहुत ज्यादा दिखेंगे उसमें. Fine. तो सी हाई पर देखो ये एक्सुडेट है बीच में ल्यूमन के, ठीक है. देन कोलोनी ग्लैंड्स का अल्सरेशन हो रहा है ना, अल्सरेशन ऑफ म्यूकोजा हो रही है विद डिस्ट्रक्शन ऑफ द कोलोनी ग्लैंड्स. सो दिस इज द अप्रोप्रिएट लाइन व्हेन यू सी. ठीक है. सो दिस वे यू हैव टू डिस्क्राइब व्हेनेवर यू डिस्क्राइब हिस्टोलॉजी ऑफ acute appendicitis, then you properly describe the architecture. The lumen में we have exudate, mucosa में what you can say is mucosa is ulcerated with destruction of the colony gland, and then we move on to submucosa. There you have focal aggregates of lymphoid follicle along with dense acute inflammation consisting of polymorphs, scattered lymphoid cells, and if eosinophils are present, you can describe that. Then we move on to muscularis propria. यहाँ देख रहे हो muscularis propria में भी dense inflammation हो रही है, छोटे-छोटे dotted areas दिख रहे हैं, those are the inflammatory cells. Then you have serosa and subserosa. Subserosa, serosa. Serosa में usually we see some vessels, fibroadipose tissue. अगर इसमें भी inflammation है, then you need to say throughout the wall inflammation is there. See, this is the H image. So few images I have taken from online and this is the case I think I reported. इसमें देखो glands देख रहे हो, ये सारे कुछ preserved glands हैं, कुछ के gland के lumen में भी you are seeing neutrophilic abscess. So neutrophil, और ये देखो पूरा throughout you are seeing this is पूरा dense acute inflammation, destruction of the glands comprising of polymorphs, lymphoid cells and few eosinophils. So see, we discussed acute appendicitis today. So similarly, I'll be discussing few common जो first we'll be discussing जो undergraduate levels पे slides होती हैं. So we'll be taking that and then we'll move on to some rare diagnosis, rare histology for MD students also. And I hope it's clear. Thank you for your patient hearing. So kindly like, subscribe and share my channel. Thank you so much.